drawing his sword to exactly the right position, it's going to be much harder than hitting it with a bat. Plus, the samurai's blade is 13 times thinner than a baseball bat. And he has the challenge of slicing the ball precisely in half. That was absolutely amazing and beautiful. Beautiful, faster than an eye blink, so there it was. Machi-san only had 4/10 of a second to slice the baseball in half. An average human would take 3/10 of a second for the brain just to register the ball being pitched. Machi-san claims he can cut a bullet fired at him from a BB gun in half. So we've come to a firing range outside the hills of LA to see if it's true. This is the size of the pellet Machi-san would try to slice with a sword. I honestly don't believe I could cut this if it was stationary on a chopping block with a chef knife. He's going to do it while flying through the air with a samurai sword. A normal person would have no chance of seeing the pellet. They were using a slow motion camera to slow the action down by 250 times. I heard it, but I didn't see it. I saw a flash, the blade went by. तो बुलेट जो है अगर तलवार से आके मिल सकता है तो दो तीर क्यों नहीं मिल सकता? जी नंबर 1 पॉइंट. नेक्स्ट, अभी लाइट बंद कर दीजिए थोड़ा. This is a different level of anticipatory processing, something so Left alone. And I find it impossible. 200 volts. If both these wires touched any ordinary person, the electricity would flow through their body, causing organs to fail and stopping their heart. You ready? I've never seen anything like that. That's the coolest thing ever. Steady current running right through his body. And he wants to prove he can handle even more electricity. Because you're actually going to pass the current through your body with power shit under. Just a tenth of an amp would normally kill an average human being. And he's bypassing like a 10 amp fuse now. That's totally unreal. You ready? All right, here we go. 3, 2, 1. Surviving this much electrical current goes against everything I've ever learned about electricity. How many? 222, 250 volts AC, 700 watts. 3 amps. This is a 3 amp blender, so you had 3 amps running through your body. I was thinking the audience and go toe to toe with it. Anybody game for that? All right, you guys, we're mathematicians. I'm taking him to the San Diego State University math department. Let's see what they think of his abilities. Now I want to see how they compare to Scott. I was hoping maybe. Here is a person is human calculator. Human calculator तो calculator से भी fast calculation करता है. I can pick some mathematicians out of the audience and go toe to toe with it. Anybody game for that? All right, you guys, we're mathematicians armed with calculators and a computer to compete with Scott's amazing ability. You guys can use your calculators, your laptops, your cell phones, call your dad or your mom, whatever you gotta do. We have a series of 10 problems. Scott and the team from San Diego State, armed with calculators, will compete for this. Here we are. We'll start with the multiplication of two-digit numbers. Ready? The numbers are 39 times 78. 3042 is correct. Scott got it first. 249
divided by 7. 35.57142. Correct. All right. Scott Speed is baffling everyone in the room. Cube root. 31443 to 68. Correct. The non-zero base is 32. The number is 67. 99, 166, 233, 300, 367, 434, 501, 568, 65, 357, 127, 699. As the challenges get harder, Scott's actually getting faster. Starting with a base of 0 and adding 10 times. The number is 48. 96, 144, 192, 240, 288, 136, 384, 432, 40. Very good. That concludes the exam. Spectacular. Thank you, sir. Pleasure. It's how you guys feel and get calculated such a making and claims he could digest things that would seriously damage a normal person. From metal to glass, there's no limit to his appetite. What I do is dangerous, and normal people shouldn't try it. But I believe in God, and this is the power He's given me. Sometimes ordinary food just doesn't appeal to me, and I find myself wanting to eat nails, light bulbs, and wood. These things are more appetizing to me, but I don't know why. I can tell you the guy that eats anything because you have the weirdest stall out here. Yes. Saline, animal fat, and newspaper are definitely unpleasant to eat, but it's something we all can survive. Do not try this at home. Eating glass can cut open the stomach, intestines, and the throat as it passes through the body. Does this not cut your mouth? Does the glass not cut your mouth? No blood? Fluorescent tubes are toxic. But is Celine actually eating it? I'm not sure. But I'm not convinced that Celine Hayes is actually swallowing the glass. To find out, I'm going to scan his stomach using the latest technology. I'm taking him to be scanned at a radiology clinic in Marrakesh. Using the latest X-ray technology, we'll see what's really going on. Hi, I'm Daniel. This is Celine. Before we start, the radiologists have their own bowl for Celine to eat. They also think it must be some kind of trick. Have you ever seen anyone eat glass before? No. It's the first time. The radiologists are now convinced, and they're ready to scan Celine. While Celine is in the scanner, the radiologist spots some of the bulb in his stomach. There's the glass. And they're astonished. He really is eating glass. Hare Krishna. So, is it possible? ये तो मैं 3-4 दिखाया आपको. There are hundreds and hundreds of such people. है ना. एक व्यक्ति ऐसा है, वो ड्रिलिंग मशीन जाता है, ड्रिलिंग मशीन चला के उसके अंदर सीट पर लगाइए, उसको कुछ नहीं होगा. He's like that. ना ऐसे कई मिरेकल्स हैं, आज भी हो रहे हैं, यानी कि पहले ही होते थे. आज 1-2 हो रहे हैं, पहले सब लोग ऐसे थे. है ना. किसी को कोई है ना बड़ा कर लेगा तो इसको सिद्धियां बोलते हैं. सिद्धि, अणिमा, लघमा, महिमा, ईशिता, वशिता, प्राप्ति, कामा, वसाहिता, ये सब सिद्धियां हैं जो कि. और इससे पूछा गया कि आपको ये सब खाने का पावर कैसे है, आपने क्या प्रैक्टिस किया था? बोला नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया, वो गॉड गिफ्टेड था. गॉड हैज गिवन मी, यू डोंट ट्राई. मेरे को दिया भगवान. वो जो इलेक्ट्रिक मैन था, उसको पता कैसे चला कि उसके अंदर एक पावर है? वो बताया कि एक बार मैंने सोचा मैं सुसाइड करूंगा. तो सुसाइड करने के लिए उसको आइडिया है कि मैं जाके ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ के और उस तार पे लटक जाऊंगा. अब देखिए आइडिया भी ऐसा आया. और जब जाके लटका तो उसको कुछ हुआ ही नहीं. तब उसको पता चला कि इसके अंदर ये पावर है. तो साइंस कैनॉट एक्सप्लेन. और ये जो
सामुराई था, वो भी काट रहा था बुलेट को। ही इज नॉट लाइक बहुत प्रैक्टिस करके सीखा है, नो, इट्स नेचुरल फॉर हिम, नेचुरल। भगवान इसलिए कहते हैं कि अल्लाह मेहरबान से गधा पहलवान। अगर भगवान किसी को शक्ति देना चाहे तो कुछ भी करा सकते हैं। पहाड़ लेके क्या, पूरा संसार लेके उड़ सकता है ना। तो भगवान राम की शक्ति के द्वारा हनुमान जी से कर सकते हैं। ये कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं है, असंभव, ये संभव है नहीं, ये संभव है। लेकिन हमारे लिए हो सकता है ना हो, लेकिन किसी और के लिए संभव है। इसलिए हमें नहीं कहना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है ना, नहीं हो सकता है और हुआ है, हुआ है। ये वास्तविक घटनाएं हैं, रामायण महाभारत, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है। वेद व्यास को क्या कोई काम नहीं था बनावटी कहानी बनाते रहने बैठे? एक दो कहानी बनाएंगे, एक पुराण का दूसरे पुराण से लिंक है कि नहीं? यानी कि इस पुराण में लिख दिया 10 पुत्र हैं इनके, और उसी पुराण में भूल गए कितने लिखा था। इस पुराण में उतने बताए जाएंगे। क्रॉस रेफरेंस है एक दूसरे का, क्रॉस रेफरेंस है, इतिहास है, ये घटना है वास्तविक। तो इस तरह से, लेकिन ये भारत जो हमारा था, जो पर विश्वास था लोगों का भारत की सभ्यता पे, तो अंग्रेजों ने आके इसको, इस विश्वास को तोड़ दिया। वैदिक शास्त्रों में जो विश्वास था, और उसके कारण आज भारत के लोग अपने सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं, संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि जो सनातन धर्म में बताया गया वो सब सही नहीं है ना। कुछ लोग बोलते हैं इतने सारे मूर्तियों की पूजा करते हैं आप, 33 करोड़, ये तो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। ये भगवान कैसे हो गए, मूर्ति है, ये पेंटिंग है, ये फोटो की पूजा करते हैं आप। तो फोटो की पूजा आप नहीं करते, आपका फोटो पूरे पोस्टर लगा के पूरे दिल्ली में लगा दिए पीके का फोटो, है कि नहीं? तो वो गलत नहीं है। हम भगवान का फोटो लगा दिए तो वो मूर्ति पूजा हो गई, वो भी मूर्ति पूजा है कि नहीं? तो क्या फोटो जो लगाया है पीके का, वो पीके है? वो फोटो पीके है नहीं है? उससे पूछिए, फोटो से पूछिए, कुछ उत्तर देगा। लेकिन फिर भी हम मानते हैं ना कि ये पीके है। पीके का इट मे नॉट रिप्रेजेंट द कंप्लीट पर्सनालिटी ऑफ पीके, है ना, बट एटलीस्ट उसके शरीर को दिखा रहा है कि नहीं? तो उसी तरह से भगवान की मूर्ति जो है पूरी तरह भगवान की तरफ बोलेगी नहीं, जैसे फोटो पीके का बोलेगा नहीं, लेकिन उसी तरह से भगवान बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वो जो विग्रह है वो भगवान के स्वरूप का है ना। और बोलेंगे भी तब जब आप उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, है ना। तो भगवान, है ना, आपके साथ रेसिप्रोकेट भी करेंगे। ऐसे कई केसेज हुए जहाँ भी मूर्तियों ने, भगवान के विग्रहों ने अपने भक्तों से बातें की है। अगर आप विश्वास नहीं मानते, कई ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आज भी एक हमारा मंदिर है केरला में, कर्नाटक में, उडुपी में। उडुपी के कोई है यहाँ? उडुपी में आप जाएंगे ना, वहाँ पे एक विग्रह है कृष्ण के। तो ब्राह्मण लोग, है ना, शूद्रों को अंदर नहीं जाने देते मंदिर में। एक शूद्र था, कनक दास उसका नाम था, वो कृष्ण से बहुत प्रेम करता था। तो जो है पीछे जाके गाने लगा, मंदिर के पीछे प्रेम में भगवान को गाने लगा गीत। रात का समय था, तो सुबह जब दरवाजा खोले लोग तो देखे कि भगवान जो है पीछे मुड़ गए हैं, पीछे मुड़ गए हैं, और पीठ जिधर था उधर खिड़की अपने आप बन गया था, और वहां पे कनकदास बैठा हुआ है और गा रहा है। तो ये भगवान है। भगवान के विग्रह की पूजा जो है वो गलत नहीं है, उसको करने में कोई गलती नहीं है ना। लेकिन आजकल के लोगों को, है ना, गुमराह कर रहे हैं। हाँ, 33 करोड़ भगवान नहीं है, भगवत गीता में भी ऐसा नहीं कहा गया है। 33 करोड़ देवता है। देवता और भगवान में अंतर है। देवता क्या है? देवता केवल डिपार्टमेंट इंचार्ज है, भगवान नहीं। जैसे सरस्वती जी भगवान नहीं है। सरस्वती जी जो है वो केवल एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। कौन सा डिपार्टमेंट? हाँ, विद्या दे सकती है, लेकिन पैसा नहीं देंगी। पैसा के लिए कौन है? हाँ, लक्ष्मी जी है, ठीक है नहीं? तो दे आर ओनली वन डिपार्टमेंट इंचार्ज, वन, एक काम केवल करेंगे। जैसे वाटर रिसोर्स के जो मिनिस्टर हैं वो केवल वाटर दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकते, ठीक है नहीं? तो उसी तरह से, लेकिन ये सब देवता है 33 करोड़, जो 33 करोड़ डिपार्टमेंट संभालते हैं। लेकिन ये भगवान नहीं है, इसको डेमी गॉड इसको बोलते हैं।
गॉड और डेमी गॉड दो लोग हैं। तो गॉड जो भगवान है ना, और भगवद गीता के आधार में वो भगवान जो है वो कृष्ण है। कैसे? आप देखिए पूरे वैदिक साहित्य उठा लीजिए, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने विश्व रूप दिखाया? कोई भगवान? गणेश जी ने विश्व रूप नहीं दिखाया, शिव जी ने विश्व रूप नहीं दिखाया, हनुमान जी तो सोच भी नहीं सकते है ना, कोई विश्व रूप नहीं दिखाया। विश्व रूप भगवान राम ने भी विश्व रूप नहीं दिखाया है कि नहीं है? नरसिंह जी ने विश्व रूप नहीं दिखाया, केवल कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया है, केवल। और भगवान खुद बोल भी रहे भगवद गीता में कि ये रूप जो ना तो पहले मैंने किसी को नहीं दिखाया आज तक, केवल तुम्हें दिखा रहा हूं, लिख रहे हैं वहां पर, भगवान बोले हैं भगवद गीता में। तो और भगवान ने कहा है कि मैं, फिर भगवद गीता के अनुसार स्पष्ट बताया गया है कि कृष्ण जो है परम भगवान है। तो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। हरे कृष्ण। अभी ड्रामा के लिए सेटअप होगा स्टेज, तो मैं अभी है ना स्टेज अभी सेटअप होगा, तब तक है ना कुछ अनाउंसमेंट भी हैं। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, 1 or 2 क्वेश्चन फॉर टेक टाइम इन दिस। यस माइक। हाँ प्रभु जी, वैदिक टाइम में जब भगवान राम और माता सीता वापस आई थी अयोध्या, तो उनके आने के खुशी में दीपावली मनाया जाता है। हाँ। लेकिन समय के साथ क्या होता गया कि यदि भगवान राम और सीता जी वापस आए थे तो पूजा तो उनकी होनी चाहिए, लेकिन समय के साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी का इंट्रोडक्शन कैसे हो गया पूजा? और ये विष्णु की पूजा छोड़ के हम लोग धन की पूजा क्यों करते हैं? हाँ, तो क्या उस दिन 2 पूजा होती है, दिवाली के दिन 2 पूजा होती है। एक तो वो तो खुशी मनाया जाता है, तो पहले केवल लक्ष्मी और गणेश का पूजा उस समय भी होता था, है ना, उस समय भी होता था। और ऐसा हुआ कि कोइंसिडेंस हो गया कि उसी दिन राम वापस भी आ गए। राम आए तो दीप जलाया गया, पहले दीप नहीं जलाया था, केवल पूजा करते थे लक्ष्मी गणेश का। लेकिन जब राम जी आए तो उस दिन से एक और ऐड हो गया, पूजा और दीप भी जलाए जाने लगे। यस, इनको दीजिए बगल में। उधर भी हाथ उठ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। हाथ उठ रहा है, आपने ज्ञान और विज्ञान, विद्रोह का नहीं है, आपने ज्ञान और विज्ञान की बात कही थी, ज्ञान युग। हाँ, तो उसमें थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए, वो पूरी तरह से मेरे को समझ। ज्ञान का अर्थ है कि जो भी आप कर रहे हो, जैसे जो भी आप कर रहे हो रिचुअल, जो भी रिचुअल कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, पहले जान लीजिए, उसके बाद करना चाहिए, है ना। क्यों कर रहे हैं तो उसको ज्ञान करते हैं, है ना। जैसे आप अगरबत्ती दिखा रहे हो तो क्यों दिखा रहे हैं, पता नहीं है और दिखा रहे हैं, तो वो रिचुअल हो गया। लेकिन जब ज्ञान आ गया तो स्पिरिचुअल हो गया, ठीक है। तो वो ज्ञान जो भगवद गीता में भगवान ने बताया है कि पहले ये समझिए कि भगवान कौन है, ये संसार क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जन्म से पहले कहाँ थे, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, हैं, इस संसार में क्यों आए हैं, मरना ही है तो आज ही क्यों नहीं मर जाए, अंत में तो मरना ही है, कुछ करना है जीवन में क्या है, और अगर मरना ही है तो पैसा क्यों कमाना है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं इनका उत्तर, ये अब इस संसार में दुख क्यों मिलता है हमें, हैं, तो ये प्रश्नों का उत्तर इसको होते ज्ञान है। और जब ज्ञान जान जाएंगे फिर आता है विज्ञान। तो विज्ञान जो है उसमें आता है ना धर्म, रिलीजियस सिस्टम, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, सिखिज्म, है। तो ज्ञान सब में एक ही है, लेकिन विज्ञान अलग अलग है, उसको अप्लाई अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे स्कूल अलग अलग है लेकिन टीचिंग एक ही है, कैरिकुलम एक है। कोई स्कूल काले रंग का होगा, कोई उजले रंग का होगा, लेकिन शिक्षा एक ही है। वो चीज को देखना है ना। तो लाइक दैट, तो इस तरह से ज्ञान और विज्ञान इसको समझना है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 9 में 17वां श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण ने बताया कि पितामह से जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव। मतलब जो 4 वेद हैं वो मैं हूँ, और पितामह में हूँ, माता में हूँ। इसमें अथर्ववेद का वर्णन नहीं किया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का क्यों नहीं किया है? हाँ, तो अथर्ववेद का इसलिए पहले एक ही वेद था, अथर्ववेद।
है ना। तो बाद में चूंकि बहुत बड़ा हो गया था इसलिए वेद व्यास ने सोचा इसको 4 भाग में बांट दें, तो उन्होंने 4 पार्ट में बांटा। तो डजंट मैटर, नाम से इतना परेशान मत होइए, काम देखिए। एनी अदर क्वेश्चन? सुबह भी आते हैं। एक मिनट, आप बाद में पूछिए, सुबह भी आप पूछिए क्वेश्चन, सेंडिंग क्वेश्चन करें। एक मिनट, आपने बताया था कि भगवान के मेडिटेशन करना बहुत इजी है, कि ये बार बार चलता रहता है, तो फिर क्या अगली बार हम वापस कलयुग में आए जन्म लेंगे इसी तरीके से? हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। अगर आप चाहें तो जन्म लेने की जरूरत भी नहीं, इसी समय चले जाइए भगवान के पास धाम में। यद्यत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमो मम मां उपेत्य पुनर्जन्म शाश्वतम दुःखालयं नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमां गता। महात्मा लोग दोबारा वापस नहीं आते संसिद्धि प्राप्त करके, हैं? तो लेकिन हाँ, वापस आ भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके कर्म के ऊपर, है ना। माइक तो चला गया, आप कैसे पूछेंगे आगे क्या? Hello sir. Yes. Not trying to be an iconoclast, but I just want to ask. I'm sorry, I'm not familiar with Hindi. I'm South Indian, so no, I already asked in English. We have no objection. Yeah. Sir, in the movie PK, which you are not mentioning, I have an issue with that. Sir, in that movie, the hero says that if Bhagavan is Papa of all, then he won't ask you to go here and there in order to get your wishes done, and that's one of the concern. Yeah, that's true. मूवी में जो बताया गया सही है ना। तो भगवान जो है वो तो हमारे पिता है, उनको तो पहले से ही पता है कि हमें क्या चाहिए, दे रहे हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं। आप जन्म लेते हो तो आप मांगते हो, तो नहीं मांगते हो ना। तो माता के स्तर में दे दिया पहले से ही एडवांस में, तो मांगने की जरूरत नहीं है भगवान से। ही नोज व्हाट इज गुड फॉर अस। Then he also says that it's wrong to ask them to go here and there to get wishes done. Yeah, that is wrong. We should not go to temple to ask something from the Lord. Bhagavad Gita says that we should go to the Lord to say, my dear Father, you have given me so much. How can I serve you? Not that how you should serve me. Sir, another concern, please. Sir, how can I become a better person, nice person, which you want me to be? है ना? Then he will give you, take one Bhagavad Gita and read it. He will not speak directly. Sir, he will give one Bhagavad Gita. You can read, then you will understand. है ना? That should be the purpose to going to the God. Sir, once I have been to the joint night, the same spiritual Christian master, Mrs. I have asked her the same thing. Like you have a Kohinoor, and the same way, like. You keep Bible in our hands and take our resources, and the same way what we talk about, what we mock about, and she told the same thing like what you say again. Like all the whole world was ruled by Hindus once, and then the Kohinoor was the current land of Hindu. Now it's in London. What's wrong in that? Everything is created by God. Yeah. So everything is created by God. Therefore, let us let us now bring sometime Kohinoor to India also. Sometime it will be in India, sometime in England, sometime in America. Why only in London? Why in London only? So he is making you a fool. Thank you so much, sir. So you should be intelligent. Should be very intelligent. Everything belongs to God, but England doesn't belong to God. It only belongs to England, that's all. Isn't it? England doesn't belong to India, and India belongs to England, isn't it? You see? And they are making fun of everything. Just by, word jugglery. This is the problem. Yes, any other question? गुरुजी, मेरा भारत महान। हाँ, वो तो है। गुरुजी, मैं कभी नहीं कि हम ही महान हैं। हाँ, मेरा भारत महान, अब कम हो रहा है। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि ज्ञान और विज्ञान, फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स, हम आज भी दूसरे देशों से इतना क्यों पिछड़ रहे हैं? जो आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, जो फोन, हम कुछ भी नहीं बनता इस देश में। ज्ञान इतना है, विज्ञान कब आएगा? ना कोई सिलिकन चिप मिलती,
कुछ बनता ही नहीं इस देश में, तो हमें कितना समय लगेगा कि ज्ञान को विज्ञान में बदलें? ज्ञान को विज्ञान में बदलने के लिए बस चैंटिंग कीजिए। वो ज्ञान की बात नहीं हो रही थी। तो ज्ञान मतलब भगवत गीता का ज्ञान बोल रहा है, उसमें आप फिजिक्स से वो अलग डिपार्टमेंट, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मैं क्यों बोलूँगा? वो कब होगा, है ना? मेरा डिपार्टमेंट फिजिक्स थोड़े ना कि मैं उसको, वो उसके लिए आप कॉलेज जाके पूछे प्रोफेसर से कब होगा, कब होंगे कामयाब। भगवत गीता के बारे में आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कब होंगे कामयाब, है ना? आप 6 महीने चैंटिंग करके देखिए, अगर आपको प्रसन्नता नहीं मिली तो बाकी बताइए। दैट आई कैन टेल। You can be a very different person what you are today. That is the power of this japa. But if you apply it, that is applied. अब समझ लिया जपा करना चाहिए, हैं? अब क्या करेंगे आप जाके? तो जी जपा करेंगे, तो जी जपा करूंगा नहीं। क्यों? मैं सोच रहा था आप तो करते ही होंगे ना। हाँ, तो 4-5 माला मेरे लिए भी करेंगे। मैं नहीं करूंगा। तो आपने तो ज्ञान प्राप्त कर, लेकिन अब विज्ञान नहीं किया, अप्लाई नहीं किया। दवाई तो ले लिया डॉक्टर से, लेकिन खाया नहीं, तो फायदा होगा? तो बाद में बोलेंगे डॉक्टर साहब आपके यहाँ टाइम वेस्ट हो गया। तो टाइम वेस्ट हो ही जाएगा यहाँ के, अगर दवाई नहीं खाई। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु जी, मुझे पूछना है कि पूजा के ऊपर मेरा प्रश्न है कि करोड़ों देवी देवता हैं, कुछ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ पशु की पूजा करते हैं, कुछ छूट जाते हैं, कुछ पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, कुछ मूर्तियों की पूजा करते हैं, कुछ संत महात्माओं की पूजा करते हैं। तो किसकी पूजा करनी चाहिए और पूजा की? पूजा केवल भगवान की, कृष्ण। इसलिए कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो। पहले बोलते अरे क्या बोल रहे भगवान, पागल भगवान है क्या आपके? पहले बोले कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति बहुत ही भारत अभ्युत्थानम धर्म सत्यदात्मानं सृजामि, धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। तो अध्याय बोले, बाद में 18वें अध्याय बोले धर्म को त्याग दो। ये क्या है? तो बोले कि धर्म को त्यागने का अर्थ है कि माम एकम शरणं व्रज। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? माम एकम, माम एकम, एकम मतलब माम मतलब मेरा, एकम मतलब केवल, केवल मेरी एक शरण में आओ। भगवान बोलते हैं बाकी सब को जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है। केवल मेरी शरण में आइए, मेरी शरण में आके, मेरी शरण में एक भगवान है ना, उनकी शरण में, वो कृष्ण में। मां मतलब कृष्ण, कृष्ण बोल रहे तो वही हुआ ना, मां मतलब मैं नहीं, कृष्ण। तो कृष्ण की शरण में जाना है, और ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, ये बताया मैंने। एक भगवान, केवल एक भगवान, अब बाकी सब देवता, डिपार्टमेंट इंचार्ज, ठीक है? तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब पेड़ पौधों का पूजा नहीं करें। हाँ, पेड़ जैसे तुलसी की पूजा करते हैं, तो तुलसी साधारण पौधा नहीं है। तुलसी जो है वो भगवान की सेविका है ना? तो जिस तरह से कोई फेवरेट व्यक्ति होता है, तो उसको अगर पटाना है तो बेस्ट तरीका क्या है? उसके बच्चे को पटाओ। अगर उसके बच्चे से प्रेम करेंगे तो व्यक्ति आपसे खुश हो जाएगा, है कि नहीं? जिससे वो प्रेम करता है, तो उसी तरह से कुछ ऐसी, जैसे गाय है, गाय से भगवान को अच्छी लगती है ना? तो अगर आप गाय को थोड़ा प्रेम कर दो तो भगवान थोड़े खुश हो जाते हैं, है ना? भगवान सब जगह है ना? सब जगह है। जैसे कि नरेंद्र मोदी हर जगह है कि नहीं? है ना? हर जगह है ना? आप देखिए नरेंद्र मोदी के अपने पावर के द्वारा हर जगह है, लेकिन साथ ही साथ अलग जगह पे भी है कि नहीं? आप नरेंद्र मोदी आज कुछ खिलाफ बोलिए, देखिए वहां पहुंच जाएगा पुलिस, है कि नहीं? तो थ्रू हिज पावर सी इज एवरीवेयर। जैसे पानी हर जगह है कि नहीं? हवा में पानी नहीं है तो पीजिए।